नमस्ते हेमंत जी। आई जस्ट शेयर अ लिटिल बिट। हेमंत जी को मैं कुछ दिनों उन्हें कल परसों ही मिला, लेकिन whatever I understood and whatever I understood from Hemant ji, from his, first of all I like to say हेमंत जी आप इतने उत्साहक है, you are so enthusiastic कि really आनंद आ गया आपसे मिलने का कि he is 73 years old, लेकिन 73 नहीं लगता है, 37 years when you hear him. So passionate about the work which you are doing, and incredible work जो मैंने आपसे कल जाना, कल सीखा और सीखने का उत्सुक हूँ। ओके, तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स कपिला जी देंगे, लेकिन जो मैंने आपसे एक मुलाकात में जानने को मिला है वो मैं सबसे शेयर करना हूँ। और आपके पिताजी जो है 99 इयर्स ओल्ड है और वो आपके लिए खाना बनाते हैं, so it is so, what do you call it, inspirational for everyone कि डैडी बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं और वो भी he is almost 100 years old. So that itself is him. If you have heard about the book Ikigai, Hemanji, have you heard about the book Ikigai? It's a Japanese book. नहीं नहीं नहीं। अच्छा, वो उसमें एक आइलैंड है जापान में जहाँ सब लोग जो है 125 साल के ऊपर जीते हैं। Many of the people are living 125. तो जब मैं आपके पिताजी को मिला कल, तो बहुत अच्छा लगा कि he is almost 100 and let him also live up to 125 or more. It will be wonderful for everyone. सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आज के जो कार्यक्रम है आपको बहुत सीखने को मिलेगा। He is an institution in knowledge of yoga and Marma therapy and much more, also Ayurveda. And I had asked him a few questions. I will be asking those for the benefit of everyone. And you may have some questions. So जैसे मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो भेजा था सबको कि मेडिसिन में और ये हीलिंग थेरेपी में इतने 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 अलग अलग therapies है. So, and many like Ayurveda will say something, naturopathy will say something, and lot of contradictions are there. So I would definitely request Hemant ji to clear a lot of those contradictions in his experience. And we have learned a lot in SS Siddha Samadhi Yoga also. So with that also we will be understanding. So with this small little introduction, informal, I'm very happy to introduce Hemant ji and very eager to hear him. वो हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी, जैसा फ्लो होता है वैसा. I thank Arun Deshpande to introduce us to him. Jai Gurudev Hemant ji. Very very warm welcome for today's program. And मैं आपका formal introduction पढ़ती हूँ. Dr. Hemant Khedekar Pune, born in 1974, age 70 plus, and of course his father, as Manoj shared, is now 99, is conducting traditional practices of drugless techniques and yoga to cure and care many acute and chronic ailments. Initially, they had their ashram in Mumbai, but due to heavy construction around it, they left it and started next ashram called Gurukul Yoga Ayurveda Naturopathy Ashram called Gyan in Pune Bhor at the bank of river Valvandi, that's Bhatgar Dam backwaters. They have many traditional practices like Marm Chikitsa and Ashtanga Yoga. And with the concept of drugless techniques, he had been to many countries in the world. Dr. Hemant has also developed his own technique for healing, which has got name in many parts of the world. Today, we welcome you, Dr. Hemant, to understand deeper of this technique, what we called as drugless technique, and how Ayurveda and yoga can clear our concept ki what to follow and what is the truth, right? Over to you, Dr. Hemant. Thank you so much. या तो हेमंत जी आप शुरुआत कर सकते हैं अपना थोड़ा सा परिचय, 10-15 मिनट आपका परिचय, आप इसमें किस तरह से आए जैसा आपने कल बताया, और उसके बाद में हम प्रश्न पूछते जाएंगे और जवाब
आप छोटा छोटा जवाब देना ताकि हम प्रश्न ज्यादा पूछ सकते हैं। ये औषध विरहित उपचार है। यहाँ पे ये एलोपैथी का जन्म जो है, जो अराउंड 200 इयर्स पहले हुआ है, उसके पहले कोई भी इस तरीके का पैथी नहीं था। और जो भी पैथी थे वो ट्रेडिशनल पैथी थे। वहाँ पे घर में नाना दादाजी करते थे, उसके बाद उनके बच्चे करते थे, उसके बाद उनके बच्चे करते थे। और बस वही टेक्निक मैंने हमारे घर में सीखा। मेरे नाना जी इस तरीके से प्रैक्टिस करते थे। ही वॉज वेरी ओल्ड व्हेन आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, एंड आई यूज्ड टू सी वेरी क्यूरियसली कि वो किसी को हाथ लगाते तो उनका दर्द निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि ये क्या जादू है, तो उनको पूछा। तो उस समय ऐसा ये था, प्रैक्टिस था कि जो भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते थे वो अपना सीक्रेट दूसरों को नहीं बताते थे। और जब उनके बहुत बूढ़ा होने के बाद मेरे पिताजी के वो नाना थे, तो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने मेरे को कुछ नुस्खे सिखाए। उसके बाद मेरे पिताजी से मैंने सीखा, मगर पिताजी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे जितने नाना जी थे। नाना जी इसके बारे में काफी जानकारी रखते थे। और कोई भी दर्द लेके कोई भी आदमी आता था, हम कोकण में रहते थे और देखते थे नाना जी कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से उनको ठीक किया करते थे। और कितना भी दर्द हो, मात्र 10-15 मिनट में वो गायब हो जाता था या कम हो जाता था। 50% कम होना भी ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय इस तरीके का दवा नहीं थी, पेन किलर नहीं थे। और फिर भी लोग इतने आराम से नाना जी के ऊपर पूरा भरोसा रख के ट्रीटमेंट लेते थे और खुश होके जाते थे। तभी मैंने निर्णय किया कि ये बात जो है मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सीखने वाला ही हूँ। और फिर मैं इसमें अपने आप को धो दिया। फ्रॉम द एज ऑफ 14 आई स्टार्टेड लर्निंग, एंड स्लोली आई लर्न सो मेनी टेक्निक्स एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, बट स्टिल मुझे वो ग्रिप नहीं आई थी। लोग मुझे एक छोटा बच्चा समझ के ट्रीटमेंट भी नहीं लेते थे। ऐसे काफी सारी दिक्कतें थी। एट द एज ऑफ 2021 मैंने अपना स्कूल का ये कंप्लीट करने के बाद उस समय का जो आयुर्वेदा का कोर्स था वो किया, जिसे आयुर्वेद विशारद बोला जाता था। और वो कोर्स करने से मुझे काफी चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ। उसमें ये भी मालूम हुआ कि मर्म चिकित्सा ये इसका अंग रह चुका है, इसका अंग है। और ये इतनी अद्वितीय ऐसी कला है, ये कला को दुधारी शस्त्र बोला गया है, क्योंकि आप अगर चाहते हैं तो ये कला से आप किसी का दर्द, पीड़ा, स्पाज्म, क्रैम्प मिटा सकते हैं या उनको वापिस वो दे दी सकते। इस तरीके से उसमें ये खूबी थी। और जैसे मैंने नाना जी से ये सीखा तो उन्होंने काफी मुझे चीजें सिखाई कि बेटा हमको लोगों को ठीक ही करना है। उस समय हमारे नाना जी हो या जो भी कोई काम करते थे, मेरे पिताजी वगैरह, एक भी पैसा लेके नहीं थे। उल्टा जो आने वाले लोग थे उनको खाना पीना देके हमारे गांव में, कोकण में, इस तरीके से उनको रिहा किया जाता था। ऐसे करते करते हम विरार वसई के साइड में रहने के लिए आए। वहां मैंने आयुर्वेदा का ये कोर्स किया, आयुर्वेद विशारद हुआ। आयुर्वेद विशारद होने के बाद मुझे मर्म चिकित्सा का ज्ञान हुआ। मर्म चिकित्सा का ज्ञान होने के बाद मैं पहले बहुत सोचता था कि ये कैसे पॉसिबल है, मगर जब देखा कि जो नाना जी करते थे वो मर्म चिकित्सा था। सर्टेन पॉइंट के ऊपर वो हाथ लगा के कुछ इंस्ट्रूमेंट से उसको एक्टिवेट करते थे और मात्र 2 मिनट में या 10 मिनट में पेन जो है उससे राहत मिलती थी। मैं बोला कि ये चीज जो है मैं किसी भी हालत में सीखूंगा। और मैं प्रैक्टिस करते गया। कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद
मेरे हाथ में ये आसार आ गए। आई स्टार्टेड गिविंग वंडरफुल ट्रीटमेंट टू पीपल। मेरे पास लाइन लगी रहती थी, मगर उस समय यही था कि पैसा नहीं लिया जाता था ये ट्रीटमेंट के लिए। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और मेरे बराबर के मेरे भाई, मेरे बराबर के मेरे मित्र कोई अच्छे अच्छे इसमें ज्वाइन हो गए, कोई बैंक में ज्वाइन हो गया, कोई LIC में ज्वाइन हो गया। उनका पगार में देखता था 5,000 6,000 उस समय का जो था पगार, और मेरे हाथ में एट द एंड ऑफ मंथ हार्डली 150 200 और 300 इस तरीके से पैसा आता था, और इससे गुजारा नहीं होता था। फिर मैं सोचा कि ये क्या है, इससे तो कारोबार चलने वाला नहीं है। फिर मैंने BCom LLB किया और मैंने स्टेट बैंक ज्वाइन किया। स्टेट बैंक ज्वाइन करने के बाद फिर भी मेरा कारोबार चालू रहा। तब तक मैंने आयुर्वेदा का एक फार्मेसी भी खोली थी, और उसमें हम दवा बना के लोगों को बेचते थे। उसके साथ साथ मर्म चिकित्सा का भी प्रैक्टिस करते थे, ताकि इसका जो रिजल्ट है वो दुगुना हो जाता था, और लोग अचंभित होते थे कि ये कैसा पॉसिबल है, मगर ये हुआ करता था। मेरा अच्छा नाम ये क्षेत्र में हुआ, और ये करते करते मैं स्टेट बैंक में लगा। स्टेट बैंक में वरली, जहाँ सबसे अच्छा काम दिया जाता था वो था EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उस समय इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में नौकरी मिलना मतलब इसकी बात कही जाती थी। इट वाज अ क्रेडिटेबल जॉब, एंड आई वाज वेरी वेल वर्स इन दिस टेक्निक ऑफ डूइंग इन IT क्षेत्र और EDP। ये करते करते मैं फिर भी मेरा काम चालू रखा, और फिर वही हुआ, एक दिन मैंने स्टेट बैंक की नौकरी छोड़ दी। मात्र 1 या 1.5 साल किया था। सब लोगों ने मुझे कोसा कि हेमंत, आप क्या कर रहे हैं, आप हाथ धो बैठे हैं। इससे बहुत अच्छी ये है क्या बोलते सर्विस है, इसमें आपको अच्छा पैसा भी मिलता है और भविष्य अच्छा है। मैं वो सोचा, मगर मुझे रहा नहीं गया और मैं वो नौकरी छोड़ बैठा। दैट वाज द टाइम ऑफ 1978-77। और फिर उसके बाद वही हाल हुआ, हाथ में पैसा नहीं। फिर मेरे मित्र, मेरे कोई रिलेटिव वगैरह सब ने ट्राई किया और बोले कि हेमंत, इस तरीके से नहीं चलेगा, तेरे हाथ में खाने के लिए पैसा भी नहीं है, तू कैसे जिएगा, और ये सोशल वर्क वगैरह सब ठीक है। मैं बोला ये सोशल वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका पैसा लेना चाहता हूँ, मगर कोई देता ही नहीं। और 1979 आई ज्वाइन CBI एंड अगेन आई ज्वाइन EDP सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मेरा स्किल उसमें बहुत ही जबरदस्त था, और इसके वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरा ये हुआ। वहां मैं काम करते करते मैंने देखा कि मुझे समय उसमें काफी मिलता था, क्योंकि मेरा स्पीड बहुत जबरदस्त था, और इसके वजह से दिन भर का काम मैं मात्र 2 या 3 घंटे में करता था, और मैं फिर फ्री हो जाता था। उस समय का मैंने उपयोग किया, और मैं अपना ये मर्म चिकित्सा का और अल्टरनेटिव थेरेपी का काम सीखने लगा। उसके बारे में बुक्स पढ़ने लगा, नेचुरोपैथी के बुक्स पढ़ने लगा। काफी रुचि निर्माण हो गई कि मैंने देखा कि अगर हमको बीमारी नहीं पड़ना है तो जस्ट क्या करना है, कुदरत के नियम का पालन करना है। कुदरत के नियम का पालन मतलब क्या? तो हम सब जानते हैं कि कुदरत ऐसा बताता है कि समय पे उठना, समय पे सोना और समय पे भूख लगना। आज हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे श्रीमंत, सबसे अमीर लोग कौन है? तो मैं ये बोलूंगा कि जिनको समय पे भूख लगती है, समय पे पेट साफ होता है और समय पे नींद लगती है, ये लोग सबसे अमीर लोग हैं। क्योंकि आज इसके लिए लाखों करोड़ों रुपया लोग खर्चा करते हैं और फिर भी रिजल्ट हाथ में नहीं आता।
ये सब देखते हुए मैंने अपने आप को बहुत खुदनसीब समझा, क्योंकि मेरे गुरु थे मेरे पिताजी, और जिन्होंने इसके बारे में मुझे अवगत कराया वो योगा मास्टर थे, वो योगा सिखाते थे और योगा के बारे में काफी कुछ जानते थे। अष्टांग योगा के बारे में वो काफी ज्ञान रखे हुए थे। यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, इसके बारे में हमारी दोनों की बहुत चर्चा होती थी। और इसके साथ साथ ये मर्म चिकित्सा का प्रैक्टिस चालू रहता था। उस समय एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के बारे में बहुत कम, बहुत ही कम लोग जानते थे। मैं तो बोलता हूँ कि नहीं के बराबर। और इस समय, ऐसे समय में मैं मर्म चिकित्सा सीखा था। धीरे धीरे ये मेरा काम बढ़ते गया और मैं बैंक में काम करते करते जितने लोग मुझे बैंक में मिलने आते थे, उससे कई गुना ज्यादा लोग मेरे ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे कि ये गुरुजी बाहर कब आए और हमको ट्रीटमेंट कब की। ये करते करते अराउंड 79-80 हम काफी इसमें घुल मिल चुके थे। और मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी बीवी जो थी वो काफी सपोर्ट कर रही थी। और इसमें ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी ने बोला कि कुछ न कुछ हमें आश्रम के जैसा बनाना चाहिए, क्योंकि आश्रम जीवन प्रणाली एक अत्यंत सुखद ऐसी जीवन प्रणाली है। अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को इससे हम ज्यादा अवगत कराए और उनको फायदा दें। तो आश्रम जीवन प्रणाली मतलब क्या है कि हमने देखा है गुरुकुल आश्रम जीवन पद्धति में हमारे कृष्ण है, भगवान श्री राम है, और जो भी है सभी इसमें से गुजरे हैं। और वो एक सामान्य शिष्य के जैसे उन्होंने उधर काम किया है। लकड़ी फोड़ने का काम है, पानी लाने का काम है, गुरुओं की सेवा करने का काम है, ये सभी काम वहां करते थे। और ये सब कंसेप्ट से मैं भारित हुआ और मैंने पहला आश्रम हमारे विरार वसई के बाहर आउटस्कर्ट में एक सफाला करके स्टेशन है, वहां देखा। वहां पहला आश्रम खोला जिसका नाम था आनंद आश्रम। हमको आनंद बांटना था। और वहां हमने क्या नहीं किया, मैंने और मेरे बीवी ने वहां पे गोबर गैस का प्लांट बनाया, ताकि हमारा खाना गोबर गैस प्लांट के ऊपर होता था। हमारे घर के चूल्हा भी उसके ऊपर जलता था, लाइट भी जलता था। और हमारा घर का एक भी चीज वेस्ट नहीं जाता था। हमारे घर का टॉयलेट भी उससे जुड़ा हुआ था। और उसमें से जो स्लरी निकलती थी वो मात्र हमारे चाय पाउडर के जैसे, उसको स्मेल नहीं था। और वो सब हम खाद जो है हम पेड़ को डालते थे। करीब 25-26 नारियल के पेड़ थे। और आने वाले हर आदमी को, हर शख्स को हम नारियल का पानी देते थे। कितने सारे क्या बोलते, शेजान के पेड़ थे और कैशूनट के पेड़ थे। इतना सुंदर कैशूनट हमारे आश्रम में वहां आता था कि उसका कोई हिसाब नहीं। उस आश्रम में अलग अलग किस्म के पक्षी थे। आपको ताज्जुब लगेगा कि तभी हमारे पास 2 हिरण थे, अनेक किस्म के खरगोश थे। और इससे मेरा पूरा आश्रम भरा हुआ रहता था। और मेरे दोनों बच्चे इसमें ही घुल मिल के रहते थे। मेरे पास अल्सेशियन था, उसके साथ कुछ अलग किस्म के और भी कुत्ते थे। और इतना सारा बड़ा परिवार मेरी बीवी बहुत अच्छी तरह से देखती थी। और आपको ताजुब लगेगा कि हमारे पास जो 2 हिरण थे, उनका नाम था मयूर एंड मंजरी। ये मयूर एंड मंजरी मेरे वाइफ से इतने जुड़े हुए रहते थे कि रात को जब वो सोती थी तो एक मयूर सर के इधर, मंजरी पैर के इधर सोती थी। और अपने मम्मी को, मतलब मेरे वाइफ को छोड़ते नहीं थे। तो हमें ऐसे कई ये थे, बच्चे थे। और इसका हम पालन पोषण करते थे। बहुत सारे लोग इस तरीके से आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो हेल्थ एडवाइजर थी सलीला तिवारी, उसकी बहन जो हमारे यहाँ आती थी। और तब जब किसी को ये क्या बोलते हैं, काढ़ा, जो अभी काढ़ा के बारे में लोग ये बोलते हैं ना, एक्सट्रैक्ट,
तो हर्बल एक्सट्रैक्ट का जो हम काढ़ा बनाते थे वो इतना फेमस हो गया था कि लोग सिर्फ वो पीने के लिए मेरे आश्रम में आते थे। इस तरीके से मेरा आश्रम फला फूला था, भरा हुआ था और काफी हमने तरक्की की थी। मगर ऐसा होता है ना कि जब आप फास्ट तरक्की करते हैं तो किसी को वो दिखा नहीं जाता, कुछ न कुछ इस तरीके से होते हैं। आजू बाजू के एलोपैथी वाले डॉक्टर्स मुझे पीटने लगे, छलने लगे और बोलने लगे कि इनके पास कोई जादू है, इनके पास कुछ छल कपट है और इसके वजह से लोग ठीक हो रहे हैं। मैं तो क्या करता था, मैं तो नेचुरोपैथी का सब कुछ ये करता था। उसके साथ साथ 107 पॉइंट मर्म चिकित्सा के और 108 पॉइंट जो माइंड, इसका पूरा कॉम्बिनेशन मेरे मन में पूरा बसा हुआ था। और लोग इतने फास्ट क्योर होते थे कि उसका कोई हिसाब नहीं। घुटनों का दर्द है, आज बोला जाता है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले 26 से 28 सीटिंग देते हैं। मैं 26 से 28 मिनट में कितना भी घुटनों का दर्द हो उसे ठीक कर देता था। कमर का दर्द है, कितना भी गैप हो, कार्टिलेज खराब हो, उसका कोई ऑयल खराब है अंदर का, ये सभी को मैं ठीक कर देता हूँ मात्र 3 दिन में। ये 3 दिन मैं इसके लिए बोलता हूँ कि हो सकता है एक ही दिन में ठीक हो, मगर 3 दिन का फासला मैं रखता था ताकि कोई गड़बड़ न हो, कोई मिस्टेक न हो। और मेरा नाम काफी फैल गया, लोग मेरे पास आने लगे, इस तरीके से ट्रीटमेंट लेने लगे। मैं सोच रहा था कि मैं अभी वापस बैंक का जॉब छोड़ूं, मगर हालात उतनी अच्छी नहीं थी और इसके लिए मैं अपना बैंक का काम चालू रखा। और जहाँ पे हुआ ऐसे कि मेरी वाइफ भी बैंक में काम करती थी, उसने अपना बैंक का काम छोड़ दिया क्योंकि घर में हमारे आश्रम में हमारा परिवार इतना बड़ा था, 150 पक्षी थे, हिरण थे और कुत्ते थे बहुत सारे और हमारे खुद के बच्चे थे। मगर वही हुआ जो हमने कभी सोचा नहीं था। गांव वालों ने हमें काफी काफी तंग किया और वो बोलने लगे कि ये कुछ अलग किस्म का जादूगर है और लोगों को टेम्पररी लगता है मगर लोगों को नुकसान इससे होगा। वहाँ के जो भी एलोपैथी वाले डॉक्टर थे वो मेरे खिलाफ जाने लगे, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने लगे। इस तरीके का माहौल वहाँ पे निर्माण हो गया। मैं बैंक जॉब नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि बहुत जरूरी थी पैसे की। ऐसे स्थिति में एक दिन हुआ ऐसे कि मैं बाहर गया था, घर में वाइफ अकेली थी और लोगों ने उसको ठगा दिया, हमारे पक्षियों को मारने लगे, हमारी हिरण को मार डाला, हमारे कुत्तों को मारने की कोशिश की। इस तरीके से खरगोश भाग गए, इस तरीके से काफी काफी नुकसान हो। मेरी बीवी बहुत हैरान हो गई और बोली कि हेमंत ये नहीं होने वाला है, इधर लोगों को जो तू दे रहा है वो उनको पसंद ही नहीं है। लोगों को पसंद है मगर कुछ ऐसे हूलिगन्स है उनको ये पसंद नहीं है। और उसमें मैं दर्द के साथ कहता हूँ कि काफी लोग जो डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे या फिर एलोपैथिक डॉक्टर थे, जो पूरा औषध का इस्तेमाल करते अच्छा होने के लिए, मेरे यहाँ कोई भी दवा ही नहीं थी। जो दवा थी ये प्राकृतिक रूप में थी और इस तरीके से मैं लोगों को ठीक करता था। उनके मन में इसके बारे में काफी द्वेष निर्माण हो गया और एक दिन वाइफ मुझे छोड़ के पूना चली आई 3 साल के लिए। मैं अकेला रहा, बहुत कोशिश किया आश्रम चलाने को, मगर हाय सब फेल हो गया। अल्टीमेटली ये भी हुआ कि बाजू में कंस्ट्रक्शन हुआ जबरदस्त, आश्रम का जो माहौल था वो सब नष्ट हो गया और मुझे वो आश्रम बेचने का जबरदस्त ये करना पड़ा, प्रेशर आया। मेरी वाइफ ने प्रेशर दिया, मेरे घर वालों ने प्रेशर दिया और फिर मैंने वो आश्रम बेच दिया। इतना दुख हुआ उस समय कि क्या बताऊं। खैर ये लाइफ फेज है, लाइफ में ये सब कुछ आता है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ये सब होने के बाद मैंने सेंट्रल बैंक से ट्रांसफर लिया पुणे में। मैंने निश्चय किया कि मुंबई में नहीं रहने का और इस तरीके से मैंने वो जगह छोड़ दी
और बम्बई में ये सब कारोबार बंद करके मैं पूना चला आया। तब तक मेरी वाइफ, मेरे इन-लॉज सब पूना आए थे और मेरे बच्चों की परवरिश बराबर नहीं हो रही थी। वो भी एक दुख था। वो पूना में बहुत अच्छी तरह से होने लगा। ऐसे करते-करते वापिस मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा अभी वापिस एक आश्रम हमको स्थापन करना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम के सिवाय ये उपचार पद्धति को एक ये नहीं आता। तो इसके लिए आपको आश्रम बनाना पड़ेगा। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक जगह पे टेम्पररी ब्रांच मैनेजर करके काम कर रहा था। वहां पे मैं रिकवरी के लिए जाता था। तो करते करते भगवान की कृपा से, ये भगवान की रचना है कि एक जगह मुझे इतनी अच्छी लगी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। वहां पे वो जो जगह, आज का जो आश्रम है, वो जगह, ये बहुत ही छोटी जगह है, वैसे 1 एकड़ भी नहीं है, मगर वहां पे ओजोन लेयर है, ऑक्सीजन लेयर है। और वहां मैं जब जैसे ही पेशेंट करने लगा तो रेट ऑफ सक्सेस ये जबरदस्त था। और इसमें मैंने क्या क्या किया कि डाइट के बारे में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए। उसके बाद अलग अलग प्रयोग इसके बारे में किए, योगा के बारे में किए, अलग अलग प्रयोग अल्टरनेटिव थेरेपी, होलिस्टिक हीलिंग के बारे में किया। मैंने कॉटेजेस बनाए ध्यान के लिए। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि काफी बड़े एरिया में इतना सुंदर कॉटेजेस ध्यान के लिए कहीं भी नहीं है। वहां लोग ध्यान करने के लिए आते हैं। ये कॉटेजेस का उपयोग इस तरीके से भी होता है कि वहां से नदी एकदम नजदीक है। माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं काफी मेरे पास। ये फॉरेनर्स आते थे ये बर्ड्स देखने के लिए, अभी भी आते हैं, अभी भी काफी लोग आते हैं। ये माइग्रेटेड बर्ड्स देखने के लिए मैंने बहुत अच्छा उसका अरेंजमेंट किया था। और ये जो आपने बताया कि एक आश्रम से दूसरा आश्रम, तो मुझे अपना याद आता है कि हम लोग भी एक स्कूल चलाते थे बॉम्बे में, MET रेस्क्यू विद्यालय, और उधर से भी हमको बोला गया कि इधर से चले जाओ। इन अ वे, टू बी पुट इट क्रूडली, वी वर थ्रोन आउट, ओके, टू बी पुट इट, तो हम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मुझे भी, अरे बाप रे, मेरे साथ हम लोग उस टाइम 150 बच्चे थे, और मुझे बोला गया कि अभी आपका टाइम निकल गया, अभी निकलो। इन अ वे, स्वीट वे, डायरेक्टली नहीं। फिर हम लोग ने तो बोला चलो एक जगह से निकले, तो हम अभी जिधर रहते हैं गुरुकुल है, और जो जो वो तो जैसा आपने बोला, नॉट इवन 1/4 एकड़ था। अभी हम मोर देन 70-100 एकर्स में रहते हैं। तो एक जगह निकलता है तो दूसरा वेरी गुड। बहुत बड़ा होता है प्रोजेक्ट। तो आपके यहाँ भी ऐसा ही यस, हुआ है, लग रहा है कि एक जगह से निकले, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, इतना सुंदर जो आप जहाँ है, एंड डेफिनेटली आई प्लान टू विजिट इट देयर एंड सी दिस आश्रम। यस, So, यस, एवरीबॉडी शुड विजिट। क्योंकि ये जो रिवर है ना, वो हाँ, बहुत उसका पुराना इतिहास है। ये मतलब ये क्या बोलते हैं कि महाभारत के पहले भी इसका ये है, प्राकृत नेम है उसका, प्राकृत नेम, संस्कृत भी नहीं, उसका प्राकृत नेम है वरवंडी, मतलब ऊपर से बहने वाली। और पूरा जो माहौल है उधर का, चारों बाजू से क्या बोलते हैं कि हर्बल प्लांट्स है। आप जो चाहे नाम लो, सब हर्बल प्लांट्स उधर है। और हम इस तरीके से जंगल में जाके हर्बल प्लांट्स लाके लोगों को अभी भी ये करते हैं। और तो उसके सिवा मैंने आश्रम में भी काफी हर्बल प्लांट्स लगाए और लोगों को उससे उपचार करते हैं। तो हेमंत जी, जो आपने अपने जीवन में, जब से आपने ये मर्मा थेरेपी शुरू किया, या जो भी योगा या बाकी आयुर्वेदा या एनी अदर थेरेपीज यू हैव बीन यूज्ड, कैन यू जस्ट शेयर अबाउट सम मिरेकल्स यू हैव सीन? सो कॉल्ड मिरेकल्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा चमत्कार आपने देखा है कि ऐसा व्यक्ति ऐसा ठीक हो गया, तो लोगों को बहुत they will be benefited by hearing this.
यस यस। अभी एक जो बात मुझे बतानी है कि 2002 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी योगा एंड नेचुरोपैथी के ऊपर दिल्ली में, जहां मुझे सौभाग्य मिला सुषमा स्वराज जी से मिलने का। वहां पे सुषमा स्वराज जी ने मेरा इंट्रोडक्शन जो है वहां के तब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शीला बापू से करवाया। शीला बापू जी ने मुझे मॉरिशस में बुलाया और तभी मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो मैं पहला विजिट किया तो लोग मुझे जानते नहीं थे। पहले कुछ दिन ऐसा हुआ कि मुझे पकोड़े और पाव खा के दिन निकालने पड़े, क्योंकि कोई पहचानता नहीं था। और फिर तभी एक विश्व शांति नाम की लड़की मेरे को मिली। वो बोली कि गुरुजी इस तरीके से नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ कि वहां का जो कैपिटल है पोर्ट लुइस, वहां पे एक औरत है जिसका सर हेड जो है वो कंटिन्यूस दुखता है, क्या आप उसको स्टॉप कर सकते हैं? तो मैं बोला ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं स्टॉप कर सकता हूँ। तो मुझे पूछा कि कितना दिन लगेगा? तो मैं बोला कि मुझे वो शख्स को मिलना है, लेडी को मिलना है, उसका नाड़ी देखना है और फिर मैं डिसाइड करूंगा। मेरे यहाँ आने के बाद वो शासक थी कि इतना सब करने के बाद वो जर्मनी गई थी, यहाँ गई थी, वहां गई थी, फिर भी उसको ये राहत नहीं मिली थी। और मुझे लगता है कि मैं 5वें दिन फिफ्थ सीटिंग को उसको पूरा राहत थी और आंख में आंसू रख के वो बोली कि हेमंत जी मिराकल, आई कांट बिलीव कि ये हो गया है करके। और तभी वहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अनिल बीचू साहब, उनकी लड़की नहीं, उनकी माँ थी, वो काफी डॉक्टर के पास गई थी। ऐसी तो वो बूढ़ी थी, ऐसी तो उम्र ज्यादा थी, मगर हट्टी कट्टी थी और मुझे नहीं लगता है कि वो चल नहीं पा सकती थी। तो जैसे ही वो अपने माँ को वहां लेके आए तो वो माँ एकदम बोलने में बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। वो बोली इतने सब डॉक्टर्स को बुलाए, उनको जला दो एक जगह पे रख के, अभी ये डॉक्टर क्या करेगा, इसके पास तो दवा नहीं कुछ नहीं। तो मैं उनको प्रणाम किया माँ जी को, और मैं बोला कि माँ जी आप मेरे को एक चांस दे के देखिए और फिर आप बोलिए। मुझे लगता है कि मैंने उनको मात्र 3 दिन ट्रीटमेंट दिया और उनका जो ब्लॉक था, उनको जो लॉक था कमर में, वो भगवान की कृपा से तीसरे ही दिन निकल गया और एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई। और फिर जो है मॉरिशस के सभी दरवाजे मेरे लिए खुल गए, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के माँ को किया था। Wow. और ऐसे कितने, हाँ, तो ये जब हुआ तो मेरा नाम सभी जगह पे हुआ, अनेक न्यूज़पेपर्स में आया, वो सब न्यूज़पेपर मैंने रखे हैं। तो मैं अभी देखा कि अभी मेरे पास कुछ न कुछ हासिल हो गया। अभी हुआ ऐसे कि जर्मनी से लोग आने लगे। एक डॉक्टर मुखर्जी करके था, वो ग्लासगो का था, उसकी मम्मी वो लोकल थी ग्लासगोयन, एंड पिताजी जो थे इंडियन थे। और वो डॉक्टर मेरे पास आए, वो बोले कि हेमंत जी मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप जो भी करते हैं इट इज नॉट गेटिंग फिटेड इन मेडिकल पैरामीटर्स, कोई मेडिकल पैरामीटर्स में बैठता नहीं है, मगर फिर भी मैं रिजल्ट देखता हूँ कि फैंटास्टिक है। तो उन्होंने एक लड़की लाई थी जो मात्र 27 ईयर्स थी, जर्मन थी, और वो बोले कि इसको ठीक करना है। मैं बोला ठीक है, मगर मेरे पास सिर्फ 4 दिन हाथ में थे और 4 दिन में मैं कैसे ठीक करूं? तो जो मेरे होस्ट थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिच्छू साहब बोले कि हेमंत जी आप कर सकते हैं, आपको करना ही है। तो उनका शब्द से मेरा हौसला बढ़ गया। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राधा मोहन दुन्कू, जो 2 देश के एक ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज थे और पीएम के कैंडिडेट थे, वो भी मेरे होस्ट थे। कभी उनके घर रहता था, कभी इनके घर रहता था, इस तरीके का माहौल था। उन्होंने मेरे को तो जबरदस्ती की कि हेमंत जी अगर ये लड़की अच्छी होती है तो आपके हाथ से होती, इसके लिए कोई ऑपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। मैंने वो बात मान ली। मात्र 4 दिन बचे थे वापिस
मुंबई आने के लिए, भारत लौटने के लिए। और वो बच्ची को लाया गया, 27-28 साल की थी, और उसको एक बच्चा हुआ था। वो रो के मेरे पैर पड़ी और बोली कि गुरुजी, आई आई हैव सीन माय husband hubby, but I don't know how my child looks. I want to see my child. तो उसके वो शब्द जो है मेरे हृदय को काट के अंदर चले गए। मैं बोला नहीं, इसको करना ही है। और वहां पे मैंने अपना पूरा सारा स्किल लगाया। 4 दिन में करीब करीब, मैं लास्ट दिन में, मेरा फ्लाइट था रात को 9 बजे, तो मुझे 6 बजे वहां पहुंचना था। और 6 बजे पहुंचना मतलब कम से कम 2-2.5 घंटा जाने के लिए लगता था। तो 4 बजे मुझे निकलना था, और मैं 12-1 बजा फिर भी वहां के क्लिनिक में ही था। सब लोग बैठे थे, काफी अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स भी आए थे मेरा ये सब देखने के लिए। राधा मोहन जी ने तो कमाल किया, पूरे जो एरिया है उसको ब्लैकआउट कर दिया, और वो बच्चे के ऊपर फोकस कर दिया, लाइट लगाया, और बाकी सब ब्लैकआउट रहा। मैं वो बच्ची को ट्रीटमेंट देता रहा, और फिर एक क्षण आया कि मुझे लगा कि अभी कुछ हो सकता है। तब मैं वो लड़की को बोला कि बेटा अभी नो यू कैन ओपन योर आईज। और मैंने आईज ओपन करने को बोला, तो उन्होंने आईज ओपन जैसे किया तो चिल्लाई कि मैं कुछ नहीं देख सकती, पूरा ब्लैकआउट है, आई कांट सी एनीथिंग। तो सभी स्तब्ध रहे, उनको मालूम था कि ये ब्लैकआउट जानबूझ के किया है। और फिर उसका सर घुमाते घुमाते एक जगह पे लाया जहां उसके बच्चे के चेहरे के ऊपर फोकस किया था लाइट। वो बोली यस यस आई कैन सी पिक्चर ऑफ स्मॉल चाइल्ड। जैसे वो बोली पूरा हॉल गूंज उठा, मैं जीत चुका था, और वो बच्ची को विजन मिल गया था। Wow. दिस वाज अ रियली ग्रेट सीन, Wow. ग्रेट दिस सीन। अभी भी मुझे रोमांच आते हैं वो क्षण। और फिर उसने मेरे लिए काफी कुछ किया। वो बोली कि आप जर्मनी चलो, मैं आप सब कुछ ये करती थी। शी हरसेल्फ वाज अ डॉक्टर, मगर मैं जा नहीं पाया कुछ कारणवश। और फिर उसका जो विजन आया था वो डीम होते फिर 2-3 महीने में चला गया। शी यूज्ड टू क्राई, शी यूज्ड टू कॉल मी, शी यूज्ड टू फोन मी। माय वाइफ यूज्ड टू टेल मी कि हेमंत व्हाई कांट यू गो देयर, शी इज रेडी टू स्पेंड फॉर। मगर क्या हुआ था कि यहाँ पे भी काफी पेशेंट थे। आपको बताऊं कि ऐसे ही एक लड़का जो जेनेटिक, उसको आंखें कमजोर थी, वो बिल्कुल देख नहीं पा रहा था। यहाँ पे बिहार में मेरा प्रोग्राम बिहार में अरेंज किया गया था। और जैसे ही मेरा वहां पे नीतीश कुमार जो सीएम है, उनके भाई ने ये सब किया था। मैं ये सब कुछ नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था कि मेरे सामने जो भी पेशेंट आए उसको मैं एक कुछ सुराग दे दूं, उसको मैं रिलीफ दे दूं। और 15 साल का बच्चा 3 साल से वो देख नहीं पा रहा था, पूरी दृष्टि चली गई थी। और वहां एक राम गोपाल, डॉक्टर राम गोपाल करके थे, वो बोले कि गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसको दृष्टि आई तो आप ही आए ये करेंगे। इसकी मम्मी रो रो के वो अभी अंधा बनने की कगार पे है। मैं सब कुछ बाकी कुछ ये किया नहीं, मैंने उसको ट्रीटमेंट के लिए बेड पे लिया। एंड यू वोंट बिलीव, सो मेनी पेशेंट्स की वहां मारामारी होती थी मेरे ट्रीटमेंट लेने के लिए, कि लोग झगड़ा करते थे। और ये सब पेपर में आ चुका था कि इस तरीके से कोई डॉक्टर हेमंत खेड़ेकर आए और इस तरीके से ये कर रहे हैं। और फिर मैंने वो बच्चे को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। 2-3 दिन कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर छठे दिन जैसे उनका पिताजी बैठा था और वो कुछ बोल रहे थे कि बेटा दिखाई दे रहा है क्या, या फिर कुछ ऐसे बोल रहे थे। तो बच्चा जोर से चिल्ला के उठा, बाबा मैं देख सकता हूँ आपको, आप चिल्ला रहे। दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। Wow. एंड दैट वाज अ रियली ग्रेट मोमेंट। और ये काफी पेपर में आ गया, और इसी के चलते फिर मैंने काफी कैंप्स जो है
बिहार में लिए, अलग अलग क्षेत्र में लिए, So सीतामढ़ी है। I think you must have seen lot of people getting cured of this, even tumors or cancer in your life. Have you seen that also? यस यस यस, हाँ उसके बारे में मैं एक बता सकता हूँ कि व्हेन आई केम टू पुणे, द फर्स्ट पेशेंट, वो डॉक्टर का लड़का था और वो डॉक्टर शायद बॉम्बे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था, डॉक्टर थोमरे करके। आई डोंट नो वेदर ही इज देयर नाउ। इट्स अ मैटर ऑफ अराउंड 15 इयर्स बैक। तो उस समय हुआ क्या कि उसको 3 ट्यूमर डिक्लेयर किए और वहां के पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि ये लड़का मात्र 3 महीना जिएगा और ये मरने ही वाला है। जैसे वो ट्यूमर जो है स्मॉल ब्रेन में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो मरने वाला ये। हुआ ऐसे कि वो लड़का बहुत क्षीण होते गया, क्रूश होते गया, काला पड़ते गया, लार टपक रही थी दोनों बाजू से, दोनों हाथ और पैर टेढ़े हो चुके थे, वो बराबर चल भी नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में मेरे पास वो लाया गया। मैंने सब कुछ चेक करने के बाद उनके पिताजी को बोला अगर ये बच सकता है तो बकरे का गोट मिल्क उसको देना पड़ेगा, वो उसको डाइजेस्ट होगा और उससे ही वो बचेगा। मेरी बात उसके पिताजी ने, डॉक्टर थोमरे ने मान ली। वहां पे जगह लेके कुछ बकरे गोट्स जमा किए, उसमें वो रहता था और मैं ट्रीटमेंट करने लगा। करीब 3 महीना तक मुझे कोई सुराग नहीं दिखाई दे रहा था। आई थिंक 3rd मंथ में डॉक्टर खुद आए, डॉक्टर थोमरे खुद आए, बोले कि गुरुजी आपको कुछ दिखाई दे रहा है असर? थोड़ा अशेम हो गया मैं, वो तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोले गुरुजी उसकी लाल टपकना बंद हो गया है। अरे बाप रे, मैं वो नोटिस ही नहीं किया था। मैं बोला ये बहुत ही अच्छा लक्षण है और फिर उसको ट्रीटमेंट चालू रखा। ऐसे करते करते 6-7 महीने गए। 6-7 महीने में वो बच्चा आराम से चलने लगा, साइकिल चलाने लगा, उसके हाथ पैर सीधे हो गए, उसका जो शरीर काला पड़ गया था वो सब कालापन चला गया और सीधे तरीके से वो चलने लगा, साइकिल चलाने लगा, एक सुदृढ़ बालक की तरह वो दौड़ने लगा, सब कुछ करने लगा। उसकी उम्र तभी 22 साल की कुछ थी और एक दिन अचानक उसने मुझे बोला कि गुरुजी मुझे शादी करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली एज ए डॉक्टर I was checking his pulse every time and I came to this decision कि he can produce children. वो अच्छा ये बन सकता है, गृहस्थी कर सकता है। उसके पिताजी और घर वाले बिल्कुल मान्य नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कोई बच्ची का लाइफ इसमें खराब हो जाएगा। और फिर उन्होंने मेरा कुछ सुना नहीं, एक गरीब आदिवासी बच्ची से उसका शादी करवा दिया। आज उसको 2 लड़के हैं, दोनों लड़के करीब 8-10 साल के हैं। उसका खुद का यूनिट है, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग का यूनिट है। वो इंजीनियरिंग हुआ है। मोटरसाइकिल पे कभी कभी मुझे देखने आता है और जब भी आता है मेरे लिए छाछ जरूर लाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि गुरुजी को छाछ बहुत अच्छा लगता है। और क्या बताऊं, उसको जब भी देखता हूँ तो वही लगता है कि गॉड इज ग्रेट। हमें अपना प्रयास करना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता, कामयाबी अपने आप आती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपका इसके विषय में क्या आपका राय है, कृतज्ञ भाव का, ग्रेटिट्यूड का? और अभी हम छोटे छोटे आप जवाब दो, क्योंकि बहुत से प्रश्न है और बहुत से प्रश्न का आप छोटा छोटा जवाब दीजिए। नक्की नक्की नक्की। हाँ जी। तो ग्रेटिट्यूड हमारे यहाँ सिद्ध समाधि योग जो गुरुजी ने हमको सिखाया, हमको बताया गया कि 5 कोश का शुद्धि, मीन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और ये भी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट आनंदमय कोश। तो एक किताब भी लिखा है गुरुजी ने। नॉर्मली हम बोलते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि टू यम गुरुजी ने हमको सिखाया है कि सबसे महत्व जो है आनंदमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश,
फिर मनोमय कोश, फिर आता है एक्सरसाइज और लास्ट में खाना। आपको इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप बताएंगे? वेल मैं इतना इसके बारे में स्टडी नहीं किया बिकॉज आई वाज टोटली फोकस ऑन मर्म चिकित्सा फ्रॉम माय चाइल्डहुड। ओके। और हुआ ऐसे कि यस काफी लोगों ने मुझे बोला कि इसका आप स्टडी करोगे तो आपके ट्रीटमेंट में और निखार आ जाएगा, मगर ऐसे ही मुझे काफी ये मिल रहा था क्योंकि घुटनों का दर्द और ये तो मैं इतना इजीली कर देता था। अभी भी लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ घुटनों के दर्द का, तो गुरुजी के पास डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन है। कैसे भी घुटनों का दर्द हो, कैसे भी घुटनों में प्रॉब्लम हो, अगर आपका हड्डी भी फट गया है तो भी मैं उसको बिठा देता हूँ। उसके लिए कुछ टेक्निक मैंने डेवलप किया है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स है। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल सी माय इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आई हैव डेवलप, और उनका उपयोग जो है मैं ट्रीटमेंट में करता हूँ। और लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। I was the first person who was allowed to practice to demos इसमें सिंगापुर में उनके नेशनल स्टेडियम में। आई एम द फर्स्ट इंडियन कि वहां मैंने दिखाया कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर यस बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो चाइना में बना है और उसका काफी उपयोग होता है, मगर ये जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है उसका जन्म जो है ये मर्म चिकित्सा से ही हुआ है। से हूँ around 689 years back he had come to India and he studied about this technique, और फिर इसका उपयोग उन्होंने यहाँ पे किया, बहुत अच्छा काम किया कि उसको एक नया आयाम दिया, नया आकार दिया। और लोगों के सामने जब अमेरिका के एक प्रेसिडेंट निक्सन आई थिंक व्हेन ही हैड गॉन टू चाइना, उनको दिखाई दिया कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में चाइना काफी आगे चली गई है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यस चाइना ने डेफिनेटली इसमें काफी तरक्की की है, मगर मर्म चिकित्सा आज भी उतनी ही पावरफुल है और जो इतना फास्ट रिजल्ट देने में सक्षम है। अगर आपको उसका ज्ञान है तो आप मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकते, इतनी ताकत इसमें थी। और मैंने ऐसे काफी अनुभव किए भी है कि एक शख्स भारतीय विद्यापीठ में पूना में उसको भारतीय विद्यापीठ में घर में भेज दिया। ही वाज सम 78 इयर्स ओल्ड और डिक्लेयर किया कि ये 2-4 दिन में चला जाएगा। अभी हुआ ऐसे कि ये पेशेंट मेरे बाजू में ही रहता था, आश्रम के बाजू में। तो किसी ने मेरे को बताया कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, क्या आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैं बोला देखता हूँ मैं। और जैसे ही मैंने वो पेशेंट को देखा तो मैंने अपना मर्म चिकित्सा का तंत्र उसके ऊपर ये किया और ट्रीटमेंट देते देते 3 दिन में मरने वाला आदमी 1 हफ्ता हुआ फिर भी जिंदा था। और 1 हफ्ते के बाद वो साइकिल चलाते गांव में घूमने लगा। ये है मर्म चिकित्सा एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ मर्म चिकित्सा कि अगर हाँ मुझे चांस मिला तो मैं ये दिखा सकता हूँ। नहीं, इनफैक्ट काफी लोग आएंगे आपके पास। और आप मर्म चिकित्सा जैसा हम जानते हैं कि आप कुछ पिन्स डालते हैं, राइट? यस। क्या उसके बारे में 1-2 मिनट आप सिर्फ समझाएंगे सबको कि क्या करते हैं मर्म चिकित्सा में? यस देखो शरीर के ऊपर 107 पॉइंट्स और 108 पॉइंट ये मन के बारे में बताया गया है। मुझे सुषमा आप जो काम करते हैं, अगर ये काम लेके अगर पाकिस्तान में जाओ तो वहां के लोगों को करो तो इंडिया को मानने लगेंगे। इस तरीके से मेरा मस्करी किया था, मगर दैट वाज ट्रू। कितने कपल्स में जो झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ में जो झगड़े होते हैं, उसको मैंने खारिज कर दिया है। और ये सब काम करता है हमारे हार्मोन्स के ऊपर। तो हर दबा दे, उनको एक्टिवेट करे तो हमें जो अपेक्षित रिजल्ट है वो मिल सकता है। ऐसे कितने लोगों ने अनुभव किया है कि जो क्या बोलते हैं कि जो सोच भी नहीं सकते थे ऐसे सोच उनमें आ जाती है। यू कैन चेंज द माइंडसेट एंड दैट रियली वर्क्स वेरी नाइस।
In fact, since you are so much in Ayurveda and natural therapy and yoga, तो इसमें contradictions भी आता है naturopathy and Ayurveda में काफी मतलब not काफी but there are some contradictions. So can you explain that contradictions? Yes, it's a good question. देखिए, मर्म चिकित्सा is basically a drugless technique, and you can cure anything you can cure in human body, and it works on endocrine system and hormonal system. So it's a different way of technique, different way of treating human being and giving the results. अभी आयुर्वेदा में क्या है कि आयुर्वेदा का जो उपचार है वो थोड़ा लेंदी उपचार है, उसमें वो दवा दिया जाए फिर उसको ये किया है, उसमें काफी टाइम जाता है। तो इसमें अगर इस तरीके से हम इसका भी इंक्लूड करें मर्म चिकित्सा, तो दवा का जो स्वरूप है वो बदल जाता है और उसका दृश्य रूप उजागर होता है, उसके जो परिणाम है वो ज्यादा निखार के ऊपर आते हैं। एक चीज के बारे में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मेरे यहाँ इनफर्टिलिटी के लिए काफी लोग आते हैं और आए हैं, और मेरे पास ऐसे कुछ पेशेंट्स हुए कि जहां कोई संभावना ही नहीं थी। 43 years old person, lady cannot produce a child, मगर मैंने ये करके दिखाया है कि 43 year old has produced the child, only that वो चाइल्ड थोड़े दिन के बाद मर गया। और उसको ये था कि चाइल्ड प्रोड्यूस करने का सुख जो था वो उसको मांगता था, वो उसको मिल गया, मगर वो अननेचुरल फॉर्मेशन था चाइल्ड का। वो मैंने उसको बोला था कि ये चाइल्ड जीने वाला नहीं है, और मात्र 1 महीने के अंदर वो चाइल्ड मर गया। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हो गए। ऐसे जैसे मैं बोला कि मॉरिशस में ये सब्जेक्ट को लेके मैं करीब 40 बार गया हूँ, वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया है। जो सेशल्स कंट्री है, सेशल्स, वहां भी उन्होंने इसके बारे में काफी जागरण किया, लोगों को समझाया, और काफी लोग मेरे पास आते थे। यहाँ पे सेशल्स में ज्यादा गुजराती और साउथ इंडियन लोग ज्यादा है। साउथ इंडियन मतलब तमिलनाडु के, तो वो लोग काफी इसके ऊपर भरोसा करते हैं, और फिर इसकी वजह से मुझे काफी वहां पे सपोर्ट मिला। मगर सबसे ज्यादा सपोर्ट तो डेफिनेटली मुझे मॉरिशस में मिला, क्योंकि मॉरिशस में 40 बार गया और एक भी दिन ऐसा नहीं गया, एक भी फेरी ऐसी नहीं गई कि जहां मैंने काम ही नहीं किया। मैं थक जाता था एवरी टाइम। एवरी दिस थिंग कैंप वाज 28 डेज का कैंप रहता था, उसमें से 23 डेज में काम करता था, सुबह से शाम तक, और अलग अलग किस्म के लोग आते थे। मॉरिशस में स्किन डिसीज बहुत जबरदस्त है। वहां पे सोराइसिस का ये ज्यादा है क्योंकि कोस्टल एरिया है, वहां लोग फिश खाते हैं, और टूना फिश और शेल फिश खाने से ये तकलीफ हो जाती है। फिर उसके बारे में मैंने काफी जन जागरण किया, और मैं आज बोल सकता हूँ एकदम इसके साथ कि 66% लोगों को मैंने स्किन डिसीज से छुटकारा दिया। तो स्किन डिजीज के बारे में हेमंत जी, मैंने भी काफी कुछ बाय चांस एक्सपेरिमेंट किया है। तो एक स्किन लाइक जैसे बोलते हैं सोरासिस से जनरली डॉक्टर्स के पास उसका कोई इलाज नहीं है, बोलते हैं क्रीम लगाते जाओ, ये करते जाओ, इसका कोई दवाई नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी को सोरासिस था 20 साल तक, और मैंने मम्मी को बोला था कि देखो आप मम्मी, आपके इमोशंस जो आप पे पकड़ कर रखे हैं, वो इमोशंस को रिलीज करो। तो उन्होंने कागज में, मैंने बताया था कि लिखना, स्क्रिबल ऑल योर नेगेटिव या इरिटेशन ऑन द कागज, और थैंक यू 4 मंत्र के साथ उसको फाड़ के मतलब इमोशंस को स्वाहा कर दो। उन्होंने 30 दिन ये किया, और
30 दिन में उनका जो 20 साल का जो रोग था, खून निकलता था, वो पूरा क्लियर हो गया मेरी मम्मी को। वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट। उसके बाद में मैंने मेरी एक फ्रेंड है, राधा हमारे फ्रेंड है, जिनकी बेटी को 21 ईयर्स से एक्जिमा है, और चाइल्ड बर्थ से। ओके और ओके। वो आए थे, सेम मैंने उनको बोला, और हाँ सेम उनको another 15 days she is now perfect skin. So I am telling everyone that skin disease, according to me, is a holding of emotions, जो डेफिनेटली मर्मा थेरेपी से आपने टच किया, क्लियर किया, और ये अंदर से जो इमोशंस है वो क्लियर करेंगे तो ये क्लियर हो जाता है। I'm just sharing with you. yes 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 Now, yes, very good very good. Yes, I would like to learn this yes, and add this thing in my knowledge. yes. यहाँ पे जो है ये तो लोग आपको जो मिल्क के बारे में, क्योंकि आयुर्वेदा काफी कुछ मिल्क के बारे में बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है दूध के बारे में, थोड़ा आप बताएंगे? आयुर्वेदा में मिल्क के बारे में इतना गंदा कुछ बताया नहीं है। In fact, in olden days when their ऋषि मुनीज were there, they used to use milk liberally. बहुत अच्छी तरीके से दूध का इस्तेमाल करते थे। वहाँ के लोग जो है उसका छाछ वगैरह बना के बटर निकाल के फिर उसका इस्तेमाल करते थे। ऐसा नहीं है कि लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, मगर एक बात आपको बताऊं कि उस टाइम मिल्क प्योर था, आदमी प्योर थे। आज आदमी की नियत बिगड़ गई है, जितना हो सके उतना पैसा कमाने का ये जो कुछ मन में घुस गया है, उसके लिए वो कुछ सोचते नहीं। जैसे कल मैंने बताया कि आप अगर इंदौर में जाओ तो इंदौर में कभी चाय मत पीना, वहां पे ऑयल पेंट के सहारे दूध बनाया जाता है और टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, मगर आपको किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी के विकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है, और इसके लिए जितना हो सके उतना बाहर का मिल्क अगर गारंटेड मिलता है तो पियो, नहीं तो पियो ही मत। आज उसमें कितनी मिलावट की जाती है ये आप सबको मालूम है, उसको मैं बताने की जरूरत नहीं है। इतनी जबरदस्त मिलावट की जाती है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लोगों को समझ में ना आए इसके लिए पूरा सोच समझ के मिलावट की जाती है ताकि लोगों को पता न चले, मगर आखिर मिलावट होती है और इसका असर आदमी के जीवन के ऊपर होता ही होता है। तो इसके लिए मैं तो ये बताऊं कि आज ये हर जगह पे फैल गया है कि जितना हो सके उतना दूध का इस्तेमाल मत करो। Beautiful. And what is your take on sugar, white sugar? व्हाइट शुगर, डेफिनेटली व्हाइट शुगर जितनी ज्यादा आप इस्तेमाल करें उसका एक क्या बोलते हैं टॉक्सिन्स शरीर में निर्माण होता है। इंसुलिन में काफी प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हमने देखा है कि हमारे यहाँ पूर्वज गुड़ खाते थे और वो भी ऑर्गेनिक गुड़ खाते थे। तो ये ऑर्गेनिक गुड़ अभी बाजार में मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा है, मगर जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा इसका प्राइस भी कम आते आते जाएगा और हम ये गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज होती है कि जो शुगर है उसका एक आदत बन जाती है और ये आदत छुड़ाना, क्योंकि उसमें जो भी चीजें हैं सल्फर वगैरह है उससे एक आदत बन जाती है, और इसके लिए वो आदत को छुड़ाना एक चैलेंज है आदमी के सामने। तो इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। बिना शुगर अगर आप दूध पीते हैं तो अच्छा नहीं लगता है क्या? बहुत अच्छा लगता है, सॉरी, हल्दी डाल के, काली मिर्च डाल के। आपका आज आपका तबीयत थोड़ा खांसी यस, आज थोड़ा मुझे ये सर्दी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या हुआ कि मेरे पिताजी को प्रॉब्लम हो गया, उनको जरा मैंने ट्रीटमेंट दिया तो मुझे भी पकड़ लिया। तो 2 दिन रहने वाला है, तीसरे दिन उसको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके लिए सब कुछ तैयारी मैंने करके रखी है। तो अलग अलग किस्म के स्टीमर्स हैं, अलग अलग किस्म के एक यंत्र मैंने बनाया है
जिससे ये हम कर सकते हैं। कोविड के समय मैंने और पिताजी ने कभी भी ये चीज का इस्तेमाल नहीं किया और काफी लोगों को इसमें से राहत दिलाई। तो आप समझ सकते हैं कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के साथ साथ अगर वर्म चिकित्सा और इस तरीके से नेचुरोपैथी का उपयोग करें, योगा का हमेशा उपयोग करते रहे, तो आदमी तंदुरुस्त रह सकता है। what about the back pain and nerve pain? हमारे एक जगदीश जी है. जगदीश जी, you can ask that question for yourself because he's in Pune and you can visit him and heal yourself also. If you want, just put on your video and ask him. Yeah. कि उनका मतलब लोअर बैक पेन था और मोर लाइक नर्व का इशू है. वही पूछेंगे. यस जगदीश जी. It is a slip disc problem, L5S1 lower back pain. बर वय किती आहे तुमचं? 71. 71. आपका ही उम्र. अच्छा, कोई बात नहीं. हाँ हाँ, उसमें मैं कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज करता हूँ. इसमें क्या है कि मर्म चिकित्सा का सहारा लेता हूँ, उसके साथ साथ योगा का सहारा लेता हूँ. और जैसे क्या बोलते हैं, स्वस्तिकासन है और कुछ आसन है, इसका सहारा लेके हम अलाइनमेंट कर सकते हैं और ये पॉसिबल है. और कितने लोगों को मैंने इस तरीके से ठीक किया है, और इधर ही नहीं प्रदेश में भी. तो अभी कहीं भी कोई भी कंट्री में जाओ, अगर वो डॉक्टर देखेंगे तो पूछते हैं कि आप कौन से मेडिसिन देते हैं. अगर मेडिसिन देने वाले डॉक्टर है तो बोलते हैं हमारे पास बताओ. हमें मेडिसिन न देने वाला डॉक्टर चाहिए, और मुझे लगता है इसमें मैं काफी ऊपर की स्तर पे है. और और उसमें माइक्रो एक्सरसाइजेस एक कर रहा हूँ और बीके अयंगार स्कूल के योगासन थोडे कर रहा हूँ. हाँ, त्याच्यात काय करायचं साहेब, की समजा आता हा एक्सरसाइज करतोय, तर हा करत असताना तुमचं शरीर पिळलं जात असताना तुम्ही श्वास सुटला पाहिजे, जागेवर उठताना परत श्वास घेतला पाहिजे. हे जर तुम्ही करू शकला तर तुम्हाला ताबडतोब त्याचा रिझल्ट येणार. कारण तुमच्या शरीराला श्वासाची फार गरज आहे, आणि श्वास हवा यही दवा है. कळलं का? हवा यही दवा. आप हवा किस तरीके से लेते और किस तरीके से छोड़ते, ये मायना रखता है इसमें. आप सिर्फ ये करेंगे तो उससे रिजल्ट नहीं है. सालों के लिए करते रहो, रिजल्ट नहीं है. अगर आप ऐसे करेंगे सांस को छोड़ते हुए, तो आपका शरीर तंदुरुस्त होगा और आपकी जो दिक्कतें सब निकल जाएगी. थैंक यू वेरी मच. मैं मिलूंगा आपसे जरूर.